مولانا غلام عباس کے بیانات سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی نیو اسلامک اپڈیٹ سے باخبر رہ سکیں۔ 10 محرم الحرام کو کیا ہوا؟ شہادت حسین۔ نبی علیہ السلام کی حدیث آپ کے سامنے موجود ہے، ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے؟ مجھے اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دعا کیا مانگی تھی؟ اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک، اے اللہ میں آپ سے شہادت کا سوال کرتا ہوں آپ کے راستے میں۔ اتنی بڑی نعمت ہے، عثمان دعا مانگتے ہیں اللہم احینی سعیدہ وامتنی شہیدہ، اے اللہ مجھے زندگی دینی ہے سعادت مندی والی، موت دینی ہے تو شہادت والی۔ شہادت اتنا بلند و بالا مقام ہے، اتنی بڑی نعمت ہے۔ ولی کو دیکھو، غوث کو دیکھو، کتب کو دیکھو، صلحاء کو دیکھو، اولیاء کو دیکھو، ہر شخص شہادت کی تمنا کرتا ہے۔ شہادت میں لذت کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے اس وقت رب جنتیوں سے کہے گا مانگو کیا مانگتے ہو؟ ہر جنتی جنت کی نعمتیں مانگے گا، لیکن شہید کہے گا اللہ یہ جنت اپنی جگہ پر، نعمتیں اپنی جگہ پر، مگر جو شہادت میں لذت تھی وہ جنت کے نعمتوں میں نہیں ہے۔ جو شہادت میں لذت تھی وہ جنت کی نعمتوں میں نہیں۔ مجھے یہ سب سے زیادہ پسند ہے، مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، کفر کے مقابلے میں لڑوں، میں ان کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں۔ جو شہادت میں لذت ہو وہ تیری جنت میں بھی نہیں۔ اندازہ لگائے کیوں؟ انعامات والے طبقات آپ ذرا دیکھیں۔ اب ان ایک بات شہادت والے کے حوالے سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، پورے حوصلے سے میری بات کو سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات والے طبقات 4 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 4۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ 4 طبقات ہیں۔ نبوت سب سے اونچا درجہ ہے، نبوت سب سے اونچا درجہ ہے۔ ان سب طبقات میں نبوت سب سے بڑا درجہ، پھر صدیق، پھر شہید، پھر صالح۔ پھر کمال کی بات یہ ہے کہ نبوت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے اونچا درجہ ہے، کیونکہ آقا امام الانبیاء خاتم الانبیاء ہیں جو سب سے اعلیٰ درجے پر ہیں۔ وہ کہتے ہیں اے اللہ یہ نبوت تیری عطا ہے، مگر مجھے پسند یہ ہے کہ میں شہید ہو جاؤں، مجھے پسند یہ کہ میں شہید ہوں۔ دیکھیے نیچے درجے والا اوپر کے درجے کا تو مانگتا ہے، لیکن یہ عجیب بات ہے، اوپر والا کہتا ہے مجھے نیچے کا درجہ دے دے۔ شہید تو کہے اے اللہ مجھے صدیق کے درجے پر لے جا، صدیق تو کہے مجھے نبوت کے قدموں میں جگہ دے، نبی تو کہے اے اللہ مجھے خاتم الانبیاء کی غلامی دے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے، جو ساری کائنات کا سردار ہے وہ کہتا ہے اللہ مجھے شہادت دے دے، اللہ مجھے شہادت دے دے۔ رحمت کائنات کی آرزو شہادت کی وجہ کیا ہے؟ اس پر ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کیوں مانگی۔ ایک عجیب بات آپ کو سمجھا رہا ہوں، توجہ کرو گی تو سمجھ میں آئے گی۔ نبوت کا درجہ کیا ہے؟ جو آدم علیہ السلام شروع ہوا، حضور پر ختم ہوا، یہ سلسلہ نبوت حضور پر ختم ہو چکا۔ اب کوئی مانگے بھی یا اللہ مجھے نبی بنا تو کیا بن سکتا ہے؟ نہیں۔ دوسری بات یہ ہے اللہ نے جس نبی کو نبی بنا کر انعام دیا ہے، نبی کوئی شخص اپنی مرضی سے نہیں بنتا، نبی کو رب چنتا ہے۔ یہ نبوت کا اعزاز بہت بڑا ہے، لیکن یہ کسبی نہیں عطائی ہوتا ہے، اللہ نبوت دیتا ہے، نبی کوئی شخص خود نہیں بنتا۔ اس لیے اللہ نے جس کو چاہے نبی بنایا، ان کو نبوت کا انعام دیا۔ نبوت مانگنے والی چیز نہیں، مانگنے سے ملنے والی چیز نہیں۔ جسے نبوت عطا ہے محنت سے نہیں، ایسے صداقت اور صدیق کا درجہ بھی عطا ہے محنت سے نہیں۔ ہر نبی کے ساتھ ایک صدیق آیا جس نے اس نبی کی تصدیق کی، جسے حضور پر نبوت ختم، ابو بکر صدیق پر صداقت ختم۔ جیسے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، ایسے ابو بکر کے بعد صدیق کوئی نہیں۔ اب دونوں درجے عطائی ہیں، کسب اور محنت، یہ دونوں درجے نہیں ملتے۔ یہ کس سے ملتے ہیں؟ اللہ سے عطا سے ملتے ہیں۔ جو محنت سے ملتی ہے وہ 2 چیزیں ہیں، ایک شہادت ہے، ایک صالحیت ہے۔ ایک شہادت، ایک آدمی نماز پڑھے صالح بنے گا، ذکر کرے صالح بنے گا، تلاوت کرے صالح بنے گا، نیک کام کرے صالح بنے گا،
दूसरी चीज़ शहादत, अल्लाह से दुआ भी मांगे, शहादत की कोशिश भी करे, कुफर से मुकाबला भी करे, कुफर के सामने भी आए, लड़ाई भी करे, जंग भी करे, ये भी मेहनत है और वो भी मेहनत है। अब ज़रा बात को समझना, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुआ मांगी, ए अल्लाह शहादत फरमा, मेरा पैगंबर बताना ये चाहता है, तूने इमामुल अंबिया बनाया, ये तेरी अता है, मैंने इसमें क्या किया, ये तो मुझे बिन मांगे तूने अता की, इसलिए अब तुझसे वो चीज़ मैं मांगता हूँ जो कसब और मेहनत में सबसे आला अरफा आला चीज़ है, वो शहादत है। और वो मैं मांगता हूँ, जब तेरी अता में सबसे आला चीज़ नबूवत थी, वो तूने अता की, नबूवत तेरी अता है, शहादत मेरी कसब है, मेरी तलब मेरा मांगना, इसलिए शहादत का एजाज़ मैं तुझसे मांगता हूँ। ए अल्लाह मुझे शहादत का दर्जा अता कर, शहादत का मकाम अता कर, शहादत का मर्तबा अता कर। गोया पैगंबर अल्लाह के हुजूर ये कहना चाहते हैं, मालिक जो तूने दिया वो भी कबूल, जो मैं मांगता हूँ वो भी कबूल फरमा ले। ये ऐसा है, किसी आदमी को मस्जिद की इमामत मिल गई, बाप इमाम था तो बेटा इमाम बन गया, ये तो अपने बाप की वजह से बना। अब देखना ये है कि उसके उस बेटे ने उस मदरसे में क्या काम किया, उसने अपनी मेहनत से उसको कितना परवान चढ़ाया। देखने की चीज़ ये है, नबूवत तो अता है, नबी ने क्या मांगा, नबी तो वो मांगा जो अल्लाह के ख़जाने में सबसे कीमती चीज़ थी, और वो शहादत है, वो शहादत है। अब शहादत का दर्जा, शहीद के इनामात क्या है। एक दूसरी बात, शहादत पर अजीब समझना, हदीस पाक में आता है शहादत इतनी बड़ी नेमत है कि आदमी जब शहीद होता है तो उसको अल्लाह 6 इनामात अता करता है। कितने? 6 इनामात अता करता है। उनमें से एक इनाम यह है कि उसके खून का कतरा ज़मीन पर बाद में गिरता है, अल्लाह उसके सारे गुनाह पहले माफ़ कर देता है। कुर्बान जाए, हाँ, अल्लाह उसके सारे गुनाह पहले माफ़ कर देता है। शहादत इतनी बड़ी नेमत, जब कब्र में रखा जाता है शहीद को, जब कब्र में रखा जाता है तो मुंतहाए नज़र कब्र फराख हो जाती है, जहाँ तक उसकी नज़र जाती है वहाँ तक कब्र खोल दी जाती है। शहादत इतनी बड़ी नेमत है कि शहीद के जिस्म से अभी रूह नहीं निकलती, ये जान कुनी के आलम में है, अभी तड़प रहा है, अभी जिस्म से रूह निकल रही होती है। अल्लाह सारे पर्दे हटाकर जन्नत में सबसे आला मकाम जो अल्लाह शहीद को देना चाहते वो मकाम दिखा देता है। और वो मकाम क्या है? जन्नत की सबसे आखिरी नेमत जो सबसे आखिर में अल्लाह अता करेगा, वो अल्लाह का दीदार है। क्या है? अल्लाह का दीदार है। अब शहीद इस जगह जब शहादत नोश कर रहा होता है, सबसे पहले अल्लाह के दीदार में मुस्तगरक होता है। इसलिए शहीद को क़यामत के दिन जन्नत की नेमतों से वो लज्जत, वो लुत्फ़ नहीं आएगा, अल्लाह जन्नत की नेमतों में वो मज़े नहीं। इसलिए शहादत के वक्त जो दीदार की लज्जत आई थी वो किसी और चीज़ में नहीं। इसलिए मेरी तमन्ना, मैं दुनिया में फिर जाऊँ, फिर लड़ूँ, फिर जामे शहादत करूँ, जितनी बार शहीद हूँ इतनी दफ़ा दीदार हो तो नसीब हैरान कुन है। आप अंदाज़ा लगाए। एक बात ज़रा समझना, हाजी हज करके आते हैं, क्या करके आते हैं? हज कर। तो वो क्या देखा? बैतुल्ला। बैतुल्ला का माने क्या? अल्लाह का घर। वो अल्लाह का घर देखे, तुम उसको मुबारकबाद दो। शहीद अल्लाह को देखे, तुम उस पर मातम करते हो। हाँ, कहते हुसैन शहीद हुआ तो हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन नहीं, वाह हुसैन कह जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? वाह हुसैन। क्यों? शहीद, एक आदमी हज के लिए जाते, अल्लाह के घर को देते, मुबारकबाद देते हैं, हार बिकने पे ख़त्म हो जाते हैं, हाँ, मिठाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। क्यों? ये अल्लाह का घर देकर आ रहा है, और शहीद अल्लाह को देख रहे, उस पर हम मातम करें। जब आपका हाजी यहाँ से चलता है, बच्चे यहाँ छोड़ता है, बीवी यहाँ छोड़ता है, घर यहाँ छोड़ता है, मकान यहाँ छोड़ता है, सामान यहाँ छोड़ता है, कारोबार यहाँ छोड़ता है, फिर यहाँ से सफ़र की सोहबतें, हाँ, बर्दाश्त करता है, तन्हाई बर्दाश्त, सब कुछ बर्दाश्त करता है। किस लिए? फिर वहाँ जाकर आप उसके गले में हार भी डालते हैं, उसको खुश आमदीद कहते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं, हर आदमी उससे दुआ भी करवाते हैं। भाई क्यों करा रहे हो? भाई ये हाजी है, अल्लाह का घर देकर आया है, काबतुल्ला देकर आया है, रोज़े रसूल देकर आया है, मुल्तज़िम को चमड़ कर दुआएँ मांग कर आए, हज अस्वद को बोसा लेकर आए। हालांकि ये सब ये घर से दूर गया, बीवी बच्चे हटाए, ख़ानदान से अलहदा हुआ, लेकिन इसको मुबारकबादें मिल रही हैं। और ज़ाहिरी बात है, फिर हुसैन ने जब अल्लाह को देखा शहादत के वक़्त, तो उससे मुबारकबाद क्यों नहीं दे? वो भी मुबारकबाद के काबिल है। फिर यहाँ पर लोग क्या कहते? हाय हुसैन की बजाय वाह हुसैन नहीं कहते। क्यों कहते? ज़ाहिरी बात है, जब उसकी रूह निकल रही होती है,
تو وہ तड़प रहा होता है और तड़पते उसको दुख और तकलीफ पहुंचती है। लेकिन ज़ाहिरी बात है आम इंसान मरे तकलीफ दुख अपनी जगह, लेकिन शहीद जब तड़पता भी है उसमें उसको मज़ा आता है। शहीद की शहादत की रूह निकलती है, उसका इनाम ये भी है कि हर इंसान की रूह कौन निकालता है? मलकुल मौत निकालता है, इज़राइल अलैहिस्सलाम निकालता है। और शहीद की रूह जब निकालने का वक़्त आता है निज़ाम बदल जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्ता तुम ज़रा साइड पे हो जाओ, हट जाओ, इसने जान की बाजी मेरी खातिर लगाई, इसकी रूह भी अल्लाह खुद निकालेगा, इसकी रूह भी अल्लाह खुद निकालेगा। कहते हैं तकलीफ हो रही, तकलीफ कभी नहीं होती, क्यों? वो अल्लाह का दीदार कर रहा है। अल्लाह से खूबसूरत कोई है मेरे? अल्लाह से खूबसूरत कोई है? जब नहीं है। आप देखें सैयदना यूसुफ और जुलेखा का दिलचस्प वाक़या। कहते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम पर अजीज़ मिस्र की बीवी फरेफ्ता हो गई और तूने उसे ताना दिया, ये तुझे क्या हो गया है? तेरा नौकर था, गुलाम था, बच्चा था, तो इस पर फरेफ्ता हो गई, तुझे क्या हो गया? जुलेखा बड़ी ज़हीन औरत थी, मलका थी। उसने सोचा कि इनको बैठकर हुस्न यूसुफ की क्या समझाऊं बताऊं, ये तो पागल औरतें हैं, क्या समझे यूसुफ क्या है, इसलिए बताने के बजाय उनको दिखाऊं। वो बड़ी समझदार थी, उसने ऐसा किया, सब औरतों को इकट्ठा करके एक जगह बिठाया, फ्रूट दिए, उनको छुरियां दी, कहा तुम इन फ्रूटों को खाओ, मैं तुम्हें यूसुफ दिखलाती हूँ। यूसुफ अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के नबी पाकदामन हुआ करते हैं, आफीफ हुआ करते हैं, नबी के तसव्वुर में भी गुनाह नहीं होता। चुनाचे जुलेखा ने यूसुफ कहा कि इस कमरे से निकलो, दूसरे कमरे में तशरीफ़ ले जाओ। अब यूसुफ चूँकि नबी थे, उन्होंने गैर महरम औरतों को नहीं देखा। यूसुफ अलैहिस्सलाम शर्मेले थे, सर झुका के गुजरे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो नहीं देखा, लेकिन उस अजीज़ मिस्र की बीवी जुलेखा ने कहा, क्या कहा? वो यूसुफ हैं। जब कहा वो यूसुफ हैं, हाथ में छुरियाँ थी, फ्रूट साथ थे, सब बैठी थी, सब उन फ्रूटों को काट रही थी। निगाह हुस्न यूसुफ पर पड़ी। कुरान कहता है क़त्तअना अयदियहुन्ना क़ुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। उंगलियां कट गई, फ्रूट कट गए, हाथ कट गए, जिस्म और कपड़े खून से तर हो गए। निगाह हुस्न यूसुफ पर थी, उंगलियां कटी। जब तक यूसुफ आंखों से ओझल नहीं हुए पता नहीं चला। जब यूसुफ चला गया तो देखा ये क्या हो गया। मेरे दोस्तों, माओ बहनों, यूसुफ मखलूक है, अल्लाह खालिक है, ये अबद है, वो माबूद है, ये गुलाम है, हाँ वो आका है। जब उसका हुस्न का ये आलम, जब उसके हुस्न का ये आलम कि यूसुफ पर नज़र पड़ती है तो उंगलियां कटती हैं, हाँ पता नहीं चलता। शहीद जब शहीद होता है, अपनी जान का नजराना पेश करता है, उस वक़्त उसकी निगाह अल्लाह के दीदार पर पड़ती है। जब वो रक़स दीदार के जलवे देखता है, उसकी गर्दन भी कटती है, उसे पता नहीं चलता, उसे पता नहीं चलता। तो शहादत के मकाम पर क्या होता है? फिर शहीद का एक और मकाम मरता। हर इंसान मरता है, दुनिया से जाता है। वक़्त का पैगंबर हो, वली हो, कुतुब हो, अबदाल हो, उसको गुस्ल दिया जाता है। शहीद उस खून के गुस्ल में लथपथ होकर उसको गुस्ल नहीं दिया जाता। वक़्त का पैगंबर का इंतकाल हो, उसे कफन पहनाया जाता है। गुस्ल के बाद शहीद को कफन नहीं पहनाया जाता, बग़ैर कफन के उतारा जाता है। तो क्या होना चाहिए? तो ऐसे शहीद पर वाह वेला नहीं होना चाहिए, हाय नहीं होना चाहिए, वाह हुसैन होना चाहिए कि जिसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खातिर जान का नजराना पेश किया। उसी के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया? वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो मेरे रास्ते में मर जाए, दुनिया से चला जाए, उसे मुर्दा मत कहो, बल अहया, बल्कि वो जिंदा है, वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम समझ नहीं रखते। दूसरी जगह फरमाया कि शहीद को अल्लाह रिज़्क़ भी देता है, खिलाता भी है, पिलाता भी है। तो मेरे अजीज़ माओ बहनों भाइयों, तो हमें भी चाहिए कि शहादत की तमन्ना करें। शहादत की मोल मिले तो उस पर हाय नहीं होना चाहिए, वाह होना चाहिए कि बुलंद बाला मकाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।